Okay. नमो वितरागाय Namo Vitragaय. नमो अरिहंताणम Namo Arihantanam. नमो सिद्धाणम Namo Siddhanam. नमो आयरियाणम Namo Ayyanam. नमो वज्रायाणम Namo Vajrayanam. नमो लोये सव्व साकुणम Namo Loye Sarvasagunam. ऐसो पंच नमोकारो Eso Panjanamukaro. सव्व पावपणासणो Saurvappanashano. मंगलाणं च सव्वेसिं Mangalam cha Sauvesim. पद्मं भवै मंगलम् Padvam Bhavai Mangalam. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya. जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद महात्माओं, आज तो हिंदी में सत्संग होगा, पर माफ करना जरा 5 मिनट निमेशानंद जी, ये बच्चों के साथ गुजराती में बोलना, बाद में हम हिंदी शुरू करेंगे। જય સચ્ચિદાનંદ. મેન તો આપણી લાઈફમાં પેરેન્ટ્સ એટલે કે મા બાપને Give mommy her phone. They're eating here. પેરેન્ટ્સ એટલે મા બાપને રિસ્પેક્ટ અથવા મા બાપને ડેઈલી પગે લાગો, ભલે તમે એમનું કયું ના માનો તો ચાલશે, પણ ડેઈલી મા બાપને નમસ્કાર કરી, પ્રણામ કરી, પગે લાગીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને બ્લેસિંગ્સ લેતા રહેશો તો લાઈફમાં તમારે ક્યાંય પણ સ્ટક નહીં થવું પડે. લાઈફમાં તમારી અંદર પેરેન્ટ્સના બ્લેસિંગ્સથી તમારી લાઈફ ફ્લેક્સિબલ અને કોઓપરેટિવ ઓટોમેટિકલી થતી જશે. કેમ? કારણ કે ભગવાન, માતાજી, દેવ દેવીઓ આ દરેકને આપણે આ મંત્ર બોલાવીને પણ નમસ્કાર કરીએ છીએ. આ મંત્ર બોલાવીને એમનામાં રહેલી ક્વોલિટીને નમસ્કાર કરીએ છીએ. આ મંત્ર બોલાવીને એમની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ, એટલે કે પરમાત્મા, એમની અંદર ગોડ ભગવાન છે એને નમસ્કાર કરીએ છીએ. પણ મેઇન આપણી અંદર જ્યારે જ્યારે આપણા પેરેન્ટ્સને આ જ રીતે નમસ્કાર કરી શકીએ, પેરેન્ટ્સને બહુ જ રિસ્પેક્ટ આપી શકીએ અને ખૂબ હાર્ટીલી બ્લેસિંગ્સ આશીર્વાદ લઈ શકીએ તો આપણી લાઈફમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સ્ટડીથી લઈને, સ્ટડી પણ કરવી હોય તો એમના આશીર્વાદની જરૂર છે,
દરેકની જોડે મિક્સઅપ થવું હોય તો એમના આશીર્વાદ લઈને આપણી ફ્લેક્સિબિલિટી એટલે કે કોઓપરેટિવ નેચર વધતો જશે. કારણ કે પેરેન્ટ્સ એ વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન, કોઈ પણ પ્રકારની એક્સપેક્ટેશન, અપેક્ષા, આશા વગર પેરેન્ટ્સ છોકરાઓને આશીર્વાદ આપતા હોય છે, બ્લેસિંગ્સ આપતા હોય છે. કારણ કે પેરેન્ટ્સના બ્લેસિંગ્સમાં, પેરેન્ટ્સના આશીર્વાદમાં કોઈ પણ પ્રકારની છોકરા પાછળથી કઈ લેવાની, કઈ આપી જાય એવી ઈચ્છા નથી હોતી. એટલે પેરેન્ટ્સના બ્લેસિંગ્સ બહુ જ હોલી એટલે કે પવિત્ર. દરેક જણે આ એક્સેપ્ટ કર્યું છે કે પેરેન્ટ્સ એટલે કે ફાધર અને મધરના, ઇવન ઘરમાં ગ્રાન્ડ મધર, દાદા દાદી, ગ્રાન્ડ મધર, ગ્રાન્ડ ફાધર હોય અને એના આશીર્વાદ લો એવરી ડે. હું તો ત્યાં સુધી કહીશ, સવારે ઉઠતા આશીર્વાદ લો અને રાત્રે સુવા જાઓ એ પહેલા એમને નમસ્કાર કરી જય સચ્ચિદાનંદ બોલીને. કારણ કે જય સચ્ચિદાનંદ એટલે આપણા ફાધર મધર અને ગ્રાન્ડ મધર, ગ્રાન્ડ ફાધર એટલે કે દાદા દાદીમાં એમની અંદર જે ભગવાન રહ્યા છે, એમની અંદર જે પરમાત્મા છે એને જય સચ્ચિદાનંદ કહેવાય છે. અને એ અત્યારે આ એજમાં જે સ્કૂલમાં છો, સ્ટડી કરો છો, ભણો છો અને હજી તમારી લાઈફ ખૂબ પાવરફુલ અને ખૂબ સ્ટ્રોંગ અને વિધાઉટ એની મિસ્ટેક્સ વાળી અત્યારે તમારી લાઈફ પાસ ઓન થાય છે. એમાં જો આ પેરેન્ટ્સના સાથે સાથે દાદા ભગવાને છોકરાઓ માટે, દાદા ભગવાને પોતાનું જીવન પણ એવું ખુલ્લું કર્યું છે કે આજના છોકરાઓને દાદા ભગવાનની એક પણ સ્ટોરી તમે કહો તો આ છોકરા એ સ્ટોરીને ખૂબ હાર્ટીલી લઈ શકશે. ઇવન આ છોકરાઓ પોતે પણ જો દાદા ભગવાનની બાળપણની એટલે કે ચાઇલ્ડહુડ તમારા જેવડા હતા ત્યારે દાદા પાસે કેવા સંસ્કાર હતા, કેવા ગુણો એટલે કે ક્વોલિટી હતી, અને દાદા ભગવાન તમારી ઉંમરના હતા ત્યારે એમની અંદર લાઈફ જીવવાની કેવી સમજણ લઈ આવેલા, એ તમને તમારી લાઈફ 100% સક્સેસફુલ કરવા માટે આ દાદા ભગવાન ખૂબ ટોપ ક્વોલિટીના આખા બધા યુનિવર્સ માટે, આખા યુનિવર્સ માટે એક મોડેલ છે. કારણ કે કોઈ આ રીતે નાનપણથી જીવ્યું નથી. મોટા થયા, અમુક ઉંમર પસાર થઈ પછી કંઈક સમજણ આવીને કંઈક થોડું ઘણું જીવ્યા હોય. પણ દાદા ભગવાન બાળપણથી પોતાની પાસે આવેલું સુખ અથવા તો પોતાને ગમતી વસ્તુ બીજાને ઇમિજિએટ તરત જ આપી શકતા હતા. આ ક્વોલિટી આજના આ યંગ યુથ છોકરાઓમાં જો સમજણમાં પણ આવી જાય તો એમને એમ પોતે આનંદમાં રહી શકે. કારણ કે દાદા ભગવાન નાનપણથી એમને જે ગમે અથવા એમની પાસે જે સુખ આવ્યું હોય એ કેમ કરીને બીજાને આપીને બીજાને સુખી કરવું. બીજા પાસેથી કઈ લઉં તો નહીં, પણ એવું આપું કે એ પણ હેપી અને આનંદમાં રહે. આ ક્વોલિટી, આ સમજણ
મા બાપના પેરેન્ટ્સના બ્લેસિંગ્સની જોડે આ દાદા ભગવાનની લાઈફ કેવી હતી નાના હતા ત્યારે એ પણ તમે જાણશો તો તમને તમારી લાઈફ બહુ જ હેપી દેખાશે. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया निमेशानंद जी. अभी 2 क्वेश्चन है. उसके पहले कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है अपने लिए, सब महात्मा के लिए, आपका पुत्र के लिए. तो उसके बारे में दादा भगवान का जन्म जयंती के बारे थोड़े बात करो, बाद में हम क्वेश्चन लेंगे. दादा भगवान मतलब जिन्होंने जन्म लिया नहीं है और जो मृत्यु से भी परे है. जन्म और मृत्यु दोनों चीज उनके लिए था नहीं, क्योंकि अमर पद, अविनाशी पद, जन्म मृत्यु लेना ना पड़े ऐसे पद में वो खुद बैठे थे और उस पद की प्राप्ति कर चुके थे. रही बात हमारी उनके देह यानी शरीर, देह मंदिर की. अंबालाल मुरजीभाई पटेल, ये बहुत हम आसानी से ये बात करते हैं, मगर ये पुरुष हम जो बात करते हैं उससे भी कहीं आसान, कहीं सरल और बहुत ही पवित्र पुरुष. वो अंबालाल मुरजीभाई पटेल उस प्रकृति को 100% परमात्मा बना चुके थे. प्रकृति का धर्म था जन्म लेना, मृत्यु होना, मतलब विनाश होना, मगर उस प्रकृति को भी संपूर्ण परमात्मा इसी जन्म में, इसी भव में उन्होंने ऐसा बनाया कि किसी का भी क्लेम उनके ऊपर रहा नहीं. सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उन्होंने किसी के ऊपर क्लेम था नहीं. उनका किसी भी जीव मात्र के प्रति उनका खुद का क्लेम था नहीं और किसी का भी क्लेम उनके ऊपर नहीं था. ऐसी कोई हरकत, कोई गलतियां थी नहीं कि किसी को उस गलतियों के ऊपर उंगली उठाना पड़े. ऐसे पवित्र पुरुष, उसका जन्मदिन और वो हमारे भाग्य में आना, क्योंकि शुद्ध उपयोग वाला दिन. दादा भगवान खुद अपनी पहचान खुद देते थे, क्योंकि हमारे पास इतनी क्वालिटी नहीं थी कि हम दादा भगवान की पहचान कर सके. वो कहते थे कि जन्मदिन, जन्म जयंती के दिन हम शुद्ध उपयोग 100%, एक छोटा सा भी क्षण, छोटे से छोटा क्षण भी वो अंबालाल मुरजीभाई पटेल होकर रहते नहीं थे. अब अंबालाल मुरजीभाई पटेल 100% सेपरेट है उस दिन, और दादा भगवान 100% वो चेयर पर है, दादा भगवान की चेयर पर. वहां से उनको निकल के या तो वहां से खिसक के शरीर में आना नहीं पड़े और केवल वही शुद्ध उपयोग से दर्शन देते थे और दर्शन लेते थे. वो कौन सा दर्शन था? अभेद दृष्टि, अभेद दृष्टि वाला दर्शन, कि मैं जो स्वरूप में है अभी मैं बैठा हूं, उसी स्वरूप का सभी में मैं दर्शन कर रहा हूं. मैं मेरा ही खुद का दर्शन कर रहा हूं. एक क्षण के लिए भी शरीर या तो शरीर के कोई भी डिपार्टमेंट से वो दर्शन नहीं करते थे. सीधा डायरेक्ट उस जन्मदिन पर दर्शन करते थे. खुद को
खुद ही का दर्शन करवाना और खुद ही का दर्शन सब में करते रहना। और उस दिन जो भी दादा भगवान के दर्शन करे, दादा भगवान कहते थे कितने सारे पापों ऐसे ही भस्म हो जाए। उस दिन हमारा इतना पवित्र, हमारा भीतर का शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग मतलब मन, वचन, काया और अंतस्करण की कोई भी क्रिया में वो होते नहीं है 100% सेपरेट। उस दिन उनका उपयोग केवल शुद्धात्मा स्वरूप का उपयोग, देह वाला उपयोग वो देखने में रखते थे, उससे हमें 100% मुक्त रहते थे। और उस दिन जो भी उनके दर्शन करे वो कभी भूल तो नहीं पाए, मगर उनके दर्शन अनजाने में भी कर ले तो भी कितने पापों को जला दे, कितने पापों को पिघाल दे। यहां तक दादा भगवान ने कहा इस दिन में हमारे दर्शन करे, तो उन्होंने कहा अनजाने में भी हमारे दर्शन किए हो तो भी संकित का बीज पड़ जाए, मतलब उसके भीतर कितने आवरण टूटे तब जाके संकित का बीज अंदर हम बो सके, डाल सके। क्योंकि ये कोई सामान्य पुरुष की जन्म जयंती नहीं है। तीर्थंकर भगवान का जन्मदिन मनाने का हक शासन मतलब उच्च कोटि के देव देवियों के पास है। जब तीर्थंकर भगवान का जभी जन्मदिन आए या तो जन्म हुए, तब देव देवियां प्रत्यक्ष, जो हमें नहीं दिखाई दे मगर खुद आते हैं और तीर्थंकर भगवान का जन्मदिन मनाते हैं कि जल्दी से केवल ज्ञान होकर जगत कल्याण के निमित्त बनो। इसी तरह इस काल में दादा भगवान, जिन्होंने खुद की पराक्रम, खुद के पुरुषार्थ पराक्रम से इसी भव में, इसी जन्म में अंबालाल मुर्जीभाई पटेल नाम के भीतर दादा भगवान प्रकट कर लिए। ऐसा पराक्रम, ऐसा पुरुषार्थ, इतना ही नहीं, वापस अक्रम विज्ञान के साथ, अक्रम विज्ञान मतलब केवल उनकी कृपा से हमने शुद्धात्मा पद पाया। ऐसे इस काल के दादा भगवान मतलब 24 तीर्थंकर के सभी का समूह का एक स्वरूप बनाए हम। 24 से 24 तीर्थंकर या 63 सलाह का पुरुष, या तो जो केवल ज्ञान लेकर बैठे, उस सभी का एक बनाए तो इस काल में केवल दादा भगवान कह सकते हैं। और सभी देव देवियों ने, सभी सृष्टि के सभी जीवों ने, सारी शक्तियां इस दादा भगवान मतलब अंबालाल मुर्जीभाई पटेल ज्ञानी पुरुष, अक्रम विज्ञानी पुरुष के भीतर डाल दी, दे दी और कहा कि जाओ, पूरी सत्ता इस साम्राज्य की, ये ब्रह्मांड की पूरी सत्ता हम आपको समर्पित करते हैं। और उसमें आप जिस तरह जगत कल्याण के निमित्त बन सको, उस तरह हम आपको सत्ता देते हैं कि आपको जैसा बनना है वैसे जगत कल्याण में आप आगे बढ़ो। ऐसे पूरे ब्रह्मांड के सभी लोगों ने ग्रीन सिग्नल संपूर्ण मर्जी से दादा भगवान को सत्ता दी। इस दादा भगवान इस काल में उसकी फोटो भी सभी को इतनी अच्छी लगती है।
उनका हास्य भी आज भी फोटो में देखो तो अच्छा लगता है। उनके चरण में पूजा करने को मिले तो भी ऐसा लगता है कि हम सही में दादा भगवान हाजिर हो और हम पूजा करते हो, ऐसा महसूस होता है, अनुभव आता है कि हम सही में उनके चरणों में हम पूजन करते हैं, उनके कपाल में तिलक करते हैं। हम हर तरीके से दादा भगवान के सामने बैठकर बहुत सारी शक्तियां मांगते, तब हमें ऐसा ही लगता है कि दादा भगवान सही में यहां पर हाजिर है। दादा भगवान ने खुद ने भी कहा था कि हम इस जगत कल्याण के उत्तम निमित्त और सभी महात्माओं को छोड़कर हम कहीं जाने वाले नहीं। हम जहां भी जाएंगे फिर भी हमारा योग बल, ऐश्वर्य और जगत कल्याण का जो बीज है वो तो हमने महात्माओं को दे के रखा है, उसके साथ ही रहेगा। ऐसा जन्म जयंती का दिन मतलब 100% दादा भगवान की तरह हम शुद्ध उपयोग में, मतलब अपने मन वाणी काया को इस दिन हम सभी मालिकी से मुक्त करके उसको फ्री रखे और हम भी दादा भगवान के दर्शन सभी महात्माओं में कर सके। सभी महात्माओं को जय सचियान करके दादा उसके भीतर बैठे दादा भगवान का दर्शन करके हम खुद का दर्शन कर सके, क्योंकि हमने हमारे भीतर जो दादा भगवान बैठे उसी का दर्शन अगर हम करने लगे तो सही में हमने जन्म जयंती मनाया, जन्मदिन नहीं मनाया। क्योंकि जन्म को सार्थक करना उसको जयंती बोलते, विजय पाया। जय होना, विजय होना उसको जयंती कहते हैं। और ये जन्म जयंती तीर्थंकर भगवंतों के लिए भी यूज किया है, ज्ञानी पुरुषों के लिए यूज किया है, और सबसे ज्यादा तो इस काल में अक्रम विज्ञानी दादा भगवान के लिए कि उनका जन्म आकाश फट जाए ऐसे बोलना है कि आपका जन्म जय हो, विजय हो। ये हमारी आवाज महाविदय क्षेत्र में सिमंदर स्वामी की परसदा में भी सुनाई देनी चाहिए कि ऐसा कैसे दादा भगवान, जहां मोक्ष किसी को नहीं चाहिए, संसार का सुख सभी को चाहिए, संसार के सुख के अलावा किसी भी सुख की हमें कामना तक नहीं है, इच्छा तक नहीं है, उस कीचड़ में, उस बैड क्वालिटी में, माइनस क्वालिटी में दादा भगवान ने क्या क्या किया? पूरे कीचड़ में कमल खिला दिया और सभी महात्मा कहने लगे आज के बाद केवल शुद्धात्मा अनुभव के सिवाय मुझे संसार नहीं, किसी भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा निश्चय है। यहां तक दादा भगवान, यहां तक महात्मा कहते हैं दादा भगवान को, हे दादा भगवान, आपके जन्म जयंती के अवसर पर आप ही का पराक्रम मुझ में प्रकट हो, आप ही का पूर्वाशार्थ मुझ में प्रकट हो। यहां तक दादा भगवान ने रख दिया महात्माओं के लिए ज्ञान चरण विधि में मन वचन काया की आपके जैसी सहजता मुझे प्राप्त हो, आपकी वृत्ति वही मेरी वृत्ति हो, आपकी दृष्टि वही मेरी दृष्टि हो, आपका स्वभाव वही मेरा स्वभाव हो, आपका ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख वही मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख हो। ये सारी बातें दादा भगवान की जन्म जयंती पर ये मांगने जैसी है। क्यों? कि हमारा मोक्ष दादा भगवान ने किया और अब हमारी जिम्मेदारी
हमारी खुद की फाइल नंबर 1 का मोक्ष करने का बाकी है। हमारा मोक्ष दादा भगवान ने हमारे हथेली में रख दिया, हमारे हाथों में रख दिया। मगर क्या कहा, आपका मोक्ष हो चुका, अब आपकी जिम्मेदारी मोक्ष करने की आपके खुद के मन वाणी काया मतलब फाइल नंबर 1 का मोक्ष आपको करना है। फाइल नंबर 1 फिसल जाए, फाइल नंबर 1 गलत ज्ञान पे चले जाए, फाइल नंबर 1 में कहीं कहीं तरह की बुराइयां अंदर प्रकट हो जाए और इफेक्ट में आए, तुरंत आप हाजिर होकर फाइल नंबर 1 को सही रास्ते पर लाना है। और ये आपका निश्चय है। यही दादा भगवान के पास सबसे बड़ा पराक्रम कौन सा है? केवल फाइल नंबर 1 को मोक्ष स्वरूप बनाना है। मतलब जिसने खुद की फाइल नंबर 1, जिसने खुद के मन वाणी काया को जीत लिया, उसको पराक्रम कहते हैं। और मन वाणी काया के अंदर की भीतर की गलतियां कम होती जाए, पिघलती जाए, उसको पुरुषार्थ कहा। मन वाणी काया को जीतना मतलब 1 सेकंड के लिए भी मन वाणी काया से आया हुआ सुख खुद के पास न रखे, दूसरों में दे दे, उसको पराक्रम कहा। क्योंकि मन वाणी काया से आया हुआ सुख मेरा खुद का नहीं है, ये तो एक पुरुषार्थ करने के बाद सुख का अनुभव हुआ। दादा भगवान बचपन से बहुत सुखी थे। कहीं पे भी उन्होंने कहीं पे भी ममत्व नहीं खड़ा किया, ममत्व खड़ा भी नहीं हो पाया। क्योंकि ममत्व करे किस चीज का, जब उसके भीतर ही इतना सुख चल रहा था तो बाहर की चीजों का ममत्व करने जैसा लगा ही नहीं। बचपन से ही बहुत सुख भीतर से अपने आप आ रहा था। क्योंकि कितने पुरुषार्थी और पराक्रम लेकर आए थे, मगर सारा सुख, संसार का सारा सुख दूसरों को सुखी करने में बांटने लगे। दादा भगवान खुद भोले कहलवाए, मूर्ख भी बने लोगों की नजरों में कि दादा भगवान आप बहुत भोले हो, बहुत मूर्ख हो। फिर भी दादा भगवान ने कहा, जो मुझे मूर्ख कहता है, जो मुझे भोला कहता है, वो खुद ही भोला है। हम तो बहुत पक्के हैं। क्योंकि जो सुख मेरा खुद का नहीं है, उस सुख को मेरे पास रख के मैं क्या करना चाहता हूं? आज मुझे अच्छी नींद आई तो किससे आई? आज मैंने अच्छा खाना खाया तो किसने खाया? आज मैंने बहुत अच्छी बातें की तो किसने बातें की? आज मैं बहुत अच्छी जगह घूम के आया, बड़े बड़े हिल स्टेशन में जाके आया, फिर भी मेरा खुद का सुख होता तो टिकता, मुझे बार बार सुख लेने जाना नहीं पड़ा। हिल स्टेशन के बाद घर पे आए, 2-4 महीने रहे, वापस कहीं ना कहीं सुख लेने जाना पड़े। तो दादा भगवान बचपन से ऐसे सुख लेकर आए थे, बांटने पर बढ़ता था, कम नहीं होता था। जितना सुख बांटे उतना बढ़े। पैसे भी लोगों के लिए बांटे, फिर भी उनके पास कभी भी पैसों की तंगी या पैसों के लिए कहीं पे भी हाथ फैलाना नहीं पड़ा। अपने पास कितने भी पैसे आए, जो प्यारी चीज है इस संसार में, अभी जो प्यारी चीज है वो सब दादा भगवान ने दूसरों को बांटने में लगा दी। दादा भगवान का जन्मदिन मनाना मतलब 24 तीर्थंकर भगवंतों की कृपा प्राप्त करना, सभी शासन देव देवियों की कृपा प्राप्त करना, और सभी शासन देव देवियों के पास से हमें ऐसे आशीर्वाद मिले कि ये मोक्ष स्वरूप फाइल नंबर 1 को मोक्ष स्वरूप होने में जो भी अंतराय है वो अंतराय टूटते जाए। इसको कहते हैं दादा भगवान का जन्म जयंती मनाना। किसकी मना रहे हैं? तो कि जो भीतर केवल ज्ञान स्वरूप है, और ऐसा ही केवल ज्ञान स्वरूप फाइल नंबर 1 में प्रकट हुआ है,
मतलब अंबालाल मुर्जी भाई पटेल, जिनके धोती का भी, जिनकी धोती की वैल्यू है, जिनके जूतों की वैल्यू है। सभी ने अच्छी अच्छी, किसी ने अंगूठी के दर्शन किए, किसी ने फोटो के दर्शन किए। मैं कहता हूं हम सब आप्त पुत्रों और महात्माओं ने दादा भगवान के जूतों के दर्शन किए, क्योंकि वो जूते कैसे थे? हमारा लाया हुआ अहंकार को पिघालने वाले जूते थे, जो अहंकार किसी भी तरह पिघल ना पाए, ऐसा स्ट्रॉन्ग अहंकार हम लेकर आए हैं। और स्ट्रॉन्ग अहंकार के पक्ष वाले हम सब है कि नहीं, मैं ये हूं। उस अहंकार को पिघालना, तोड़ना और उस अहंकार से मुक्त होने का सबसे बड़ी दवाई दादा भगवान के पास उनके जूते थे। जब दादा भगवान कहते हैं चलो आ जाओ सब, किसको प्रसादी चाहिए, लोग टूट पड़ते थे और दादा भगवान जूते लेकर पीछे ऐसे मारते थे, ऐसा देते थे। मार खाना इतना अच्छा लगे, मार खाना इतना अच्छा लगे। और जैसे मुंह ऊपर करे तो सभी के मुंह पर बड़ी खुशी, बड़ा आनंद कि इतना अहंकार बिगर का हास्य हमारे मुंह पे। दादा भगवान के ऊपर तो था ही, दादा भगवान का हास्य तो अहंकार बिगाड़ का था ही, मगर जैसे ही जूते मारे और हम जैसे ही दादा भगवान के दर्शन करें, हमारा हास्य उस समय अहंकार बिगड़ का हो जाता था। ये कैसा जूता! लोगों ने अंगूठी के दर्शन किए, लोगों ने फोटो के दर्शन किए, दादा की टोपी के दर्शन किए। हनुमान जी ने राम जी के चरण के दर्शन किए, गौतम स्वामी ने महावीर भगवान के चरणों में रहने के दर्शन किए। कहीं पर भी एक क्षण के लिए भी सिर उठाया नहीं। क्यों? हनुमान जी, गौतम स्वामी, ये सभी ऐसे समर्पित हुए थे और समर्पित होने के बाद ऐसे लघु बनकर रहे चरणों में कि उनका मोक्ष वहीं का वही हो गया। इसी तरह हम सभी आप्तपुत्र दादाजी के चरण का सेवन करते हैं, दादाजी के जूतों का सेवन करते हैं। क्यों? तो कि हमें, हमारे पास जो भी सत्संग है, जो भी हमारे पास चरित्र है, जो भी पवित्रता है, केवल दादा भगवान की कृपा का फल है। अगर मैं मानने लगूं कि मुझे ज्ञान समझ में आ गया है, अभी मुझे सिर उठा के चलना है। हनुमान जी के पास बहुत विद्या थी, इतनी विद्या थी कि हनुमान नहीं थे, अणुमान थे। एटम जितने छोटे भी हो सकते थे और एटम जितने लाइट वेट भी हो सकते थे, फिर भी जैसे ही छूटने का रास्ता और छूटने के निमित्त मिले, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। गौतम स्वामी के पास बहुत सारी विद्या थी और गौतम स्वामी भी उस समय बहुत पवित्र पुरुष थे। गौतम स्वामी जब यज्ञ करते थे तो उस यज्ञ में देव देवियों की हाजिरी अवश्य रहती थी। ऐसे गौतम स्वामी जब महावीर भगवान को मिले, तब गौतम स्वामी भी एक ही क्षण में पता चल गया कि मैं कुछ भी जानता नहीं हूं, जो कुछ भी जानता हूं वो प्रकृति का ज्ञान है और प्रकृति का ज्ञान विनाशी है, टेम्पररी है। चाहे वो विद्या हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान के दर्शन होने के बाद उन्होंने कह दिया, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, जो जानता हूं वो सांसारिक ज्ञान है, अहंकारी ज्ञान है और टेम्पररी है। इसी प्रकार आप्तपुत्रों का भी यही रहा। दादा भगवान को गए आज
32 ईयर्स, 32 साल, 33 साल हो गए दादा भगवान के बिगर जीना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कसौटी है, क्योंकि जिसके आधार पर हम खड़े हैं, जिसकी उंगली पकड़कर हम चल रहे हैं, और जिन्होंने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा है, सभी महात्माओं के ऊपर आज भी है, फिर भी ऐसा महसूस होता है कि हमें टटोलने वाला, हमें सिर पे टकोरा मारने वाला, या तो हमको जागृत करने वाला ये दादा भगवान, क्योंकि उनकी कृपा से आज हम 33 ईयर्स से जन्म जयंती मनाते हैं। दादा भगवान को फोटो में देखकर हम लाइव हमारे अंदर निधिध्यासन, मतलब हमारे अंदर जीवंत करते हैं, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। दादा भगवान वही मेरा स्वरूप है, और वही स्वरूप को मुझे, वही स्वरूप की जन्म जयंती मनाना है, वही स्वरूप की मुझे पूजा करना है, और वही स्वरूप की आराधना करना है। तब जाके ये बाहर का दिखाई देने वाला फाइल नंबर 1 मोक्ष स्वरूप होते जाएगा। अगर मैं भीतर बैठे दादा भगवान का दर्शन नहीं करा सकता, मेरे फाइल नंबर 1 को, मतलब मेरे खुद के मन वाणी काया को भीतर बैठे दादा भगवान का दर्शन कराने में अगर मैं चूक जाऊं, तो फाइल नंबर 1 सिर उठा लेगा, सिर खड़ा कर देगा और बताएगा मैं भी जानता हूं। ये दादा भगवान की जन्म जयंती के दिन यही हमारी दादा भगवान के चरणों में रखने की एक सबसे बड़ी, सबसे प्यारी चीज। संसार में लक्ष्मी प्यारी है, मान सम्मान प्यारा है, लोगों की अपनी प्रॉपर्टी प्यारी है। मैं कहता हूं कि दादा भगवान, मैं जो कुछ भी जानता हूं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे पास जो भी जानकारी है दादा आपके पास रखता हूं, और दादा मेरे पास जो भी पवित्रता है वो पवित्रता मेरी खुद की नहीं है, आप ही ने अंदर प्रकट करके। तो आज मैं आपका जन्मदिन मनाकर मेरे भीतर जो आपने प्रकट किया है वही दादा भगवान की जन्म जयंती मना रहा हूं। बाहर से मैं दादा भगवान आपकी पूजा, आपकी आराधना करता हूं, और करते करते मैं ये कहता हूं कि मेरे भीतर जो दादा भगवान प्रकट किए उसकी भी मैं आज इस दिन को पूजा करके ये फाइल नंबर 1 को मैं सावधान अलर्ट करता हूं कि भीतर बैठे दादा भगवान के पक्ष में अब तेरा जीवन जाना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, ना कि केवल खुद के लिए। जय सच्चिदानंद रजनी भाई, जय सच्चिदानंद। अब आपने तो अभी दादा भगवान को ये सत्संग में लेके आया, तो अभी कश्यप भाई आरब जरा एक मिनट प्लीज बैठना। ये निशानंद जी क्वेश्चन बोला कि जो जन्म जीवन के दादा का दर्शन करते थे उसका कर्मों बहुत भस्मभूत होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कई लोगों ने दादा भगवान को मिला नहीं था, कई महात्माओं दादा भगवान को जन्म जयंती के देवा दर्शन नहीं किया था, तो उन लोग को लिए हैंडीकैप है कि उन लोग को भी ये भस्मभूत सब कर सकते हैं। जब तक दादा भगवान से मिले हुए आप्त पुत्रों और महात्मा जब तक है, तब तक इस दादा भगवान की अक्रम विज्ञान मतलब मोक्ष ट्रेन में सबकी जगह रिजर्वेशन हो चुकी है। क्योंकि दादा भगवान ने, ये बहुत समझने जैसी बात है रजनी भाई, बहुत सूक्ष्म रूप में मोक्ष की सत्ता, मोक्ष देने की सत्ता भी उन्होंने खुद ने बनाई नहीं थी। ऋषभदेव भगवान की आज्ञा लेकर मोक्ष
देने में वो निमित्त बनते थे। मोक्ष देने की सत्ता भी, उसका राइट भी उन्होंने खुद के पास नहीं रखा। जैसे जैसे लोगों को मिलता गया वैसे वैसे दादा भगवान ने लिंक सिमंदर स्वामी के साथ जोड़ दी कि अब मेरी जरूरत नहीं है, सिमंदर स्वामी भगवान की जरूरत है। और मेरी ही तरह ये महात्मा, ये सभी महात्मा आप्तपुत्रों अपनी पवित्रता से, चारित्र से ये जगत कल्याण के उत्तम निमित्त बनने वाले हैं। और ये सभी जो मिले हैं वो दादा भगवान के गुण, दादा भगवान का शरीर अलग बात है, दादा भगवान स्वरूप अलग बात है, और बीच वाला भाग जो 100% क्वालिटी पवित्रता वाला है उसकी पहचान करवा के लोगों के पास उस क्वालिटी, उस पवित्रता, उस गुणों की भजना ये महात्माओं, ये आप्त पुत्रों दूसरों के पास करवाते रहेंगे। इसके लिए दादा भगवान ने कहा आप गुणों की भजना करते हो, हमारे भीतर पवित्रता की भजना करते हो तो आपको वैसा प्राप्त होगा। आप अगर हमारी शरीर की पूजा करते हो तो वैसा प्राप्त होगा। और हमारे भीतर जो गुण प्रकट हुए हैं, पवित्रता प्रकट हुई है, उसकी आराधना, उसकी पूजा करोगे तो वैसा आप होते जाओगे। तो अभी जो भी है महात्मा, ये दादा भगवान की असल गुणों की पूजा करते हैं, असल प्योरिटी की पूजा करते हैं। शरीर से भी कहीं ज्यादा प्योरिटी का दर्शन करना, पूजा करनी, गुणों की पूजा करनी, मतलब अपने आप दादा भगवान की कृपा उनके ऊपर होती जाती है। और शासन देव देवियां भी दादा भगवान की क्यों उनके रक्षा करते थे, उनकी पूजा करते थे, केवल गुणों के अधीन, शरीर देखकर नहीं। शरीर एक मीडिएटर था, मगर जो अंदर पवित्रता, 24 तीर्थंकर भगवंतों की पवित्रता जो प्रकट हुई थी उसकी पूजा देव देवियां करते थे। वैसे ही आज अभी इस जन्म जयंती के दिन बाहर से दिखाई दे ऐसे शरीर की पूजा करेंगे, मगर सही में हम चरण विधि बोल के, कविराज के पद गाकर, शक्तियां मांगकर गुणों की पूजा करते। मतलब 100% वो ट्रेन में हम बैठ चुके हैं साहब। बहुत अच्छा। इसलिए कोई महात्मा को कुछ टेस्ट नहीं होना मांगता है कि दादा आपने बताया ऐसे करेगा तो दादा ही दादा है। अभी सिमंदर स्वामी भगवान से तार जोड़ दिया है साहब। हाँ, नमो अरियंताणम, सिमंदर स्वामी भगवान प्रत्यक्ष, ऐसी भक्ति तो किसी ने की नहीं थी। ये तो पहचान करवाई जब भगवान महावीर स्वामी थे, तभी भी लोगों पहचान नहीं सके भगवान महावीर स्वामी को, जाने के बाद पहचाना। और हम सभी ने दादा भगवान के माध्यम से सिमंदर स्वामी को आज भी हम संपूर्ण पहचानते जा रहे हैं, उनके करीब होते जाते हैं हम। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी 3 क्वेश्चन है। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद सबको। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद निमेश आनंद जी। मुझे ये जो है दादा आरती में थोड़ा सा डाउट है। ये पद है, बीजी आरती दादा नी केवल दर्शन करे, पोषाए ना पोषाए जगे क्रिया में आकरता। तो ये थोड़ा कृपया समझा दीजिए, इसका अर्थ जो है। बहुत ही सिंपल है कश्यप साहब, बहुत ही सिंपल। मैंने अभी भी कहा, मन वचन काया की कोई भी क्रिया को खुद करने वाले नहीं थे, ऐसा पक्का होना जी, वो पक्का होना। मन वचन काया की, तीनों की जो भी क्रिया है, जो भी मन का धर्म अलग है,
वाणी का धर्म अलग है और काया शरीर का धर्म अलग है। ये तीनों अपने आप अपने धर्म में है, अपनी क्रिया में है। उस क्रिया से 100% वो क्रिया करने वाला मैं नहीं हूं। इसको केवल दर्शन कहा। केवल दर्शन, मन से होती हुई क्रिया को भी देखते रहना, जानते रहना, उससे मुक्त रहना। वाणी से होती हुई क्रिया को भी देखते रहना, जानते रहना, उससे मुक्त रहना। और काया से खाना पीना सोना ये जो भी हो रहा है उसको केवल वो देखते थे, वो खुद नहीं थे। ये कोई भी क्रिया मैं करता नहीं हूं, चाहे जगत को ये स्वीकार हो या ना हो। जगत को ये स्वीकार हो या ना हो, इसका प्रमाण क्या था? तो कि जब भी कोई भी जगत के कोई भी लोग दादा भगवान मतलब अंबालाल मुर्जीभाई पटेल की गलती बताए तो वो खुद क्रिया करने वाले नहीं थे। उसका प्रमाण मतलब सर्टिफिकेट क्या था? तो जब भी कोई बताए तो तुरंत कहते थे कि मुझसे गलती हो गई, ये मेरी कमजोरी है। कभी भी उस मन वाणी काया की क्रिया का पक्ष लिया नहीं है साहब। बार बार दादा भगवान कहते थे कि ये वाणी टैप रिकॉर्ड है, ये मन ज्ञान से वश में है और मन ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। मैं मन से मुक्त हूं। ज्ञेय को ज्ञेय स्वरूप पे देखना मतलब ज्ञाता होने के बाद वो ज्ञेय को भी ज्ञानाकार बना देना, ज्ञान स्वरूप बना देना। तो मन से भी 100% मुक्त थे और काया की सारी क्रिया से मुक्त थे। उसको कहा दादा भगवान की दूसरी आरती का ये बहुत अच्छी समझ दी है और ये पद में हमें भी बिठाया है। ऐसा नहीं कि दादा भगवान खुद बैठे। दादा भगवान ने खुद ने कहा कि केवल दर्शन करे, पोसाए या ना पोसाए। पोसाए मतलब जगत को जगत स्वीकार करे या ना करे कोई बात नहीं, मगर ये कोई भी क्रिया, मन की क्रिया, वाणी की क्रिया या शरीर की क्रिया, ये तीनों क्रिया मेरे बस में नहीं है और मैं खुद करने वाला नहीं हूं। ये दशा, ये जगह पर हम सब महात्माओं को भी बिठाया है, मगर हम कहां कच्चे पड़ जाते हैं? तो हम शुद्धात्मा के निश्चय में कच्चे पड़ने की वजह से हम बार बार कभी मन में एक हो जाते हैं, कभी वाणी में एक हो जाते हैं और कभी काया से भी एक हो जाते हैं। ऐसा हमें महसूस होता है। सही में देखो तो दादा भगवान ने जिस दशा, जिस जगह हमें बिठाया है, वो जगह पर बैठने के बाद हम मन की भी क्रिया में एक नहीं हो सकते, वाणी की कोई भी क्रिया में एक नहीं हो सकते, काया की कोई क्रिया में एक नहीं हो सकते। मगर हमें ऐसा लगता है, तो क्यों लगता है कि मैं मन की क्रिया में एक हो गया? तो कि हमें शुद्धात्मा के अलावा कोई दूसरी चीजों की वैल्यू बढ़ जाए, शुद्धात्मा के अलावा किसी दूसरों सुखों का दूसरे सुखों की वैल्यू बढ़ जाए, तब जाके हम मन में एक हो जाते, वाणी में एक हो जाते, वाणी बोलने वाले हो जाते। मन सोच रहा है तो मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूं, काया काम कर रही है, क्रिया करती है तो मुझे लगता है मैं कर रहा हूं। ये हमारी कमजोरी के कारण है। हालांकि हमें दादा भगवान ने हमको बिठाया कहाँ है? कि यही आरती की जो ये पंक्तियां है, आरती में जो लाइनें है, वही हमारे भीतर दादा भगवान प्रकट होने के बाद यही दशा में हम बैठे हैं साहब। कश्यप साहब, जगत को स्वीकार क्या मतलब ये जो है, मुझे विशेष बाकी सब समझ में आया, आपकी बहुत अच्छा आपने समझाया। पोषाए या ना पोषाए मतलब क्या क्या स्वीकार नहीं होता, मतलब जो क्रिया की बात कर रहे हैं उसमें। अरे साहब, जगत जो देखता है उसको यही मानता है कि वो ही करने वाला है। हाँ जी। जगत क्या देखेगा? तक कि ये खुद चाय पीते, ये खाना खाते, ये बोलते, ये जाते, ये आते हैं जी। और दादा भगवान कहते हैं जगत को
जो स्वीकार है उसका हम भले ही स्वीकार करें, मगर हमारे भीतर क्या है? केवल दर्शन। केवल दर्शन मतलब मन की कोई क्रिया करने वाले हम नहीं है, वाणी की कोई भी क्रिया करने वाले हम नहीं है, शरीर से होती हुई क्रिया को करने वाले तो नहीं है, मगर तीनों को देखने वाले हम है। मगर जगत क्या कहेगा? दादा भगवान ऐसे थे, ये ऐसा था, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने, क्योंकि जगत के पास खुद कर्ता स्वरूप है, करने वाले है, और लोगों को भी करने के स्वरूप में ही दर्शन करते हैं कि वो इसने किया, उसने किया, इसने ऐसा किया। तब दादा भगवान ने कहा मैं खुद करने वाला हूं नहीं, और जगत को भी करने वाला मैं देख नहीं रहा हूं। जी जी, समझ में आया। ठीक है कच्छप भाई। हाँ, एक और पूछ सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो? एक मिनट टाइम होगा तो वापस आपको बुलाएंगे। ओके ठीक है ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, दादा भगवान ने कहा है आत्मार्थ जीना यही स्वार्थ कहलाता है, इसका मतलब क्या होता है? अहंकार के लिए जीना वो जगत की भाषा है। आज आरव का कोई अपमान करेगा तो आरव को कहाँ दुख हुआ? शरीर में तो कहीं पे भी खरोच नहीं आई, तो दुख कहाँ हुआ? तो क्या आरव का अहंकार को। और दादा भगवान अहंकार के लिए जी नहीं रहे थे। भीतर बैठे परमात्मा, भीतर बैठे शुद्धात्मा के लिए पूरा जीवन बिताया। लोगों ने अपमान किया, लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की, लोगों ने उनको गालियां दी, फिर भी दादा भगवान कहते थे कि मेरा अहंकार पिघालने के लिए मुझे जन्म मिला है, और मैं मेरा अहंकार पिघाल रहा हूं, मतलब अहंकार की शुद्धि कर रहा हूं और जी रहा हूं मेरे भीतर बैठे परमात्मा के पक्ष में। इसके लिए दादा भगवान का 10 साल, मतलब अच्छा साल, 10 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक दादा भगवान भीतर बैठे परमात्मा के लिए जिए, और हम सब अहंकार के लिए। आज आरव को कोई अपमान करेगा तो आपको लगेगा मेरा अपमान किया, मतलब आप भीतर बैठे भगवान के लिए जी नहीं रहे हो, आपके खुद के अहंकार के लिए। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी वाहवाह करें, तो भी आपको क्या फर्क पड़ा? तो कि आरव का अहंकार खुश हो जाए, लोग वाहवाह करें तो, और लोग अपमान करें तो आरव का अहंकार ढीला पड़ जाए। और आरव खुद क्या मानता है? खुद मैं आरव हूं, मेरा नाम आरव नहीं, मैं खुद आरव हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद आरव हूं। तो दादा भगवान क्या कहते थे? तो कि जो मैं खुद नहीं हूं और होने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि आरव तो टेम्पररी है, 5, 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद में तो आरव की मृत्यु हो जाएगी। तो दादा भगवान के कि मैं टेम्पररी के लिए जी नहीं रहा हूं, मैं तो मेरे भीतर बैठे परमानेंट भगवान के लिए जी रहा हूं। इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन भीतर बैठे भगवान के लिए निकाला, बाकी सारा ज्ञान लोगों के लिए बांटना उन्होंने चालू रखा। ठीक है, बहुत बढ़िया स्वामी जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरा सारा अहंकार पिघल जाए जो। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। कपड़ा में हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने जो दादा के शूज की बात बताई ना, तो क्या हुआ कि 86 शायद 86 में गुरु पूर्णिमा थी नवसारी में, और सभी प्रसंग तो अच्छी तरह से हो गया, अच्छी तरह से रहा। मगर बाद में क्या हुआ कि जब दादा प्रसाद दे रहे थे तब मैं भी लाइन में खड़ी थी, मुझे पूरा सीन दिखाई देता है। जब मेरी बारी आने वाली ही थी, लाइक 5-10 लोग आगे थे, तो मैं लाइन में से निकल गई। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि दादा की प्रसाद लेने में ये चूक क्यों आ गई है और क्या हुआ है वो दफा, अभी भी मुझे ये सीन याद आता है। और मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं मैं ले सकी वो प्रसाद। बूट जो मार रहे थे दादा ऐसा सभी नहीं को। है,
सभी को। ये तो मैंने ये नहीं, हमने बात की, मुझे ये वो ठीक सीन है, अभी वो भी याद आता है, कई बार याद आता है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, या मैं यही कह रहा हूँ कि ये बात ठीक है, मगर दादा का प्रसाद दृष्टि से भी था। दृष्टि का प्रसाद दादा भगवान का बहुत ही ऊंचा प्रसाद था, दृष्टि का, जिसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए। दृष्टि मतलब दृष्टि, या हिंदी में दृष्टि कहते हैं, गुजराती में दृष्टि कहते हैं। दृष्टि। दादा भगवान की दृष्टि जहां पड़े उसका कल्याण अवश्य होना है। तो दृष्टि का प्रसाद आपने पाया था, या बाकी सारा प्रसाद कम पाया हो, ज्यादा भी पाया हो, वो कोई बात नहीं, मगर सभी महात्माओं ने दादा का दृष्टि का प्रसाद, कौन सी दृष्टि, तो कि एक दृष्टि हमारी भीतर की कमजोरियों की दादा भगवान खुद पहचान करवाते थे, और दादा भगवान ही उसको पिघालने में हमें शक्तियां देते थे। और दूसरी दृष्टि कौन सी, तो कि जो दादा भगवान के पास परमानेंट थी, केवल ज्ञान तक, मोक्ष होने तक, वो दृष्टि हमें हमेशा के लिए दे दी। हमें हमेशा के लिए, चाहे हमारा जन्म बदल जाए, फिर भी ये दृष्टि हमारे साथ रहने वाली है। जो हमें दृष्टि मिली है, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। निश्चित। व्यवहार दृष्टि से मैं निमेश हूं, इसका भाई हूं, उसका पति हूं, इसका ये हूं। व्यवहार दृष्टि से ये है, और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं। ये दृष्टि में दादा भगवान हर पल हर क्षण खुद रहते थे, और वो प्रसाद सबसे बड़ा सभी महात्माओं को मिला, सबसे बड़ा प्रसाद, जो कभी भी मृत्यु होने के बाद भी वो प्रसाद आपके पास से चला ना जाए। मृत्यु होने के बाद वापस नया जन्म मिलते ही ये दृष्टि वाला प्रसाद आपके साथ रहने वाला है। बाकी सारा जो प्रसाद मिला वो इसी जन्म में खत्म होने वाला है, मगर हम सबको सबसे बड़ा दृष्टि का प्रसाद मिला। एक कौन सी दृष्टि थी, कि गलतियों को पहचानना, गलतियों को धोना, और गलतियों से मुक्त होने वाली शक्तियां दादा भगवान ने दी। ये दृष्टि दी कि खुद की गलतियां देखो, धो, और उससे मुक्त होने के लिए हम आपको शक्ति दे रहे हैं। केवल दादा भगवान ने क्या कहा, जितनी शक्तियां आप मांगोगे उतना हम देने को तैयार है। और दूसरी दृष्टि का प्रसाद कौन सा, तो कि दो दृष्टि वाला प्रसाद, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। और ये दो दृष्टि वाला प्रसाद जितना आप बांटोगे, ये दो दृष्टि से जितना आप पूरा दिन में रहोगे, उतना आपका भी कल्याण है और लोगों का भी कल्याण है। ओके, है ना? क्योंकि मुझे खेद बहुत रहता है कि ऑलमोस्ट नंबर आने वाला था और दादा सभी को प्रसाद दे रहे थे, मैं हट क्यों गई बीच में से, अभी माइंड में न रहता है मेरा। मगर दादा ने आपको मेन प्रसाद तो दे दिया है, दृष्टि का प्रसाद तो दे दिया है। 85 में ज्ञान मिलने के बाद हर रोज जाती थी दादा को ये करने के, और हर रोज दादा का एक सत्संग होता था, बैठती थी, मगर ये दफा मैं चूक गई तो मुझे अभी खेद रहता है कि क्या क्यों ऐसा हो गया। हमारा હવે આપણે આગળ જઈએ। या चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निरशान जी 2-3 मिनट है तो આપણે કશ્યપ ભાઈ का क्वेश्चन लेंगे। कश्यप भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को उसी जो दादा आरती का पूछना है कि उसमें आगे लिखा है, चौथी आरती दादा नी अदीट तप करे, ज्ञान अज्ञान बिन भेदी स्वचरित्र लहे। ये स्वचरित्र लहे मतलब कि स्वचरित्र खुला होना का अर्थ है कि थोड़ा पूरा अच्छे से समझा दीजिए। नहीं, शुद्धात्मा प्रकट होने के बाद 3 चीज मुख्य है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ये 3 को 3 रत्न कहा, 3 रत्न कहा। ये 3 रत्न से ही खुद का और दूसरों का जगत कल्याण अपने आप हो सकता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र। अब 2 प्रकार का व्यवहार में चारित्र कौन सा, तो कि व्यवहार में चारित्र स्थूल में
अलग है, सूक्ष्म में अलग है, सूक्ष्मतर में अलग है और सूक्ष्मतम में अलग है। जी तीनों में अगर हम चारित्र की बात करें तो बाहर से हम प्योर रहे, अच्छा रहे, बुरी नजर, बुरा चारित्र, कुदृष्टि न हो। जी उससे आगे जाए तो हम हमारी खुद की गलतियों से मुक्त होते जाए और सभी गलतियों से मुक्त होना, उसको भी चारित्र कहा। उससे आगे जाए तो क्या हमारी गलतियां निकल गई और हम खुद गलतियों से मुक्त हो गए, फिर भी आज दूसरों के कारण, हमारी वजह से दूसरों को भी गलती खड़ा ना होवे, ये भी एक सूक्ष्म बात है। हमारी गलतियों से मुक्त हो गए, मगर उसके बाद क्या है तो क्या हमारी वजह से, हमारी निमित्त से दूसरे किसी को भी गलतियां खड़ा ना हो या गलतियां ना कर बैठे, वो भी एक चारित्र है। और अंतिम चारित्र, अंतिम मतलब श्रेष्ठ और अति सूक्ष्म चारित्र, ये चौथी आरती जो आपने पूछा, वो है अदिठ तप। अदिठ तप तीर्थंकर भगवंतों की भाषा में बहुत ही अलग अलग बताया है, मगर लास्ट उसमें भी अदिठ तप में टॉप क्वालिटी वाला तप, अदिठ तप कौन सा है तो कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है। और निमेष वो अज्ञान वाला भाग है, डिस्चार्ज अज्ञान वाला भाग है। अज्ञान को अज्ञान में रखना और ज्ञान को ज्ञान में रखना, ये दोनों सेपरेट रखना, और दोनों को सेपरेट रखने में टॉप क्वालिटी का तप अंदर होते रहता है। ऐसा अदिठ तप मतलब न दिखने वाला तप, न दिखाई दे। अदिठ मतलब न दिखाई दे, ऐसा तप। तो कि कौन सा तप है तो कि बार बार हम ज्ञान छोड़कर अज्ञान में मिक्स हो जाते हैं। अज्ञान वाला भाग हमको इफेक्ट देने की चालू करता है, तो हमें लगता है कि मैं ऐसा हूं। तो कि ज्ञान को ज्ञान में रखना मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, केवल ज्ञान स्वरूप हूं, मैं विज्ञान स्वरूप हूं, उसी जगह बैठकर अज्ञान को अज्ञान रूप में देखते रहना, दोनों को सेपरेट रखना, इसको बहुत बहुत बड़ा तप कहते हैं। और जब ये तप आपके भीतर होते जाए, उतना उतना चारित्र मतलब चरित्र, कौन सा चरित्र तो कि केवल ज्ञान वाला चरित्र, कल्याण वाला चरित्र, ये चरित्र जिसको वितराग भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने चरित्र कहा, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। तो चारित्र कौन सा कहा तो ये चारित्र को चारित्र कहा। ठीक है कश्यप साहब? जी समझ में आया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कश्यप भाई। निमिषान जी, अभी अपना टाइम हो गया है एक्सपीरियंस सुनने का, तो एक्सपीरियंस लेगा दीपकांत जी। जय सच्चिदानंद। हमारी अनुभव की यात्रा तो अब तक बहुत ही रोमांचक रही है। एक एक लोग महात्मा आते हैं और दादा का एक और स्वरूप हमें समझ में आता है, पहचानने में आता है, और किस तरह से वही दादा को उन्होंने अपने अंदर जागृत रखा है, जीवंत रखा है। तो आज हमारे बीच आ रहे हैं वसंत भाई कोठारी जी। जय सच्चिदानंद। दूसरा बंद करिए, 2 minutes are on। मीना बहन को कहिए अपना बंद कर। And you remove from your ear, otherwise she won't be able to hear anything. That's why. बोलो। वो तुम नहीं तुम चली जाओ, दूर चली जाओ ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ तो she will be able to hear. As I am speaking, she is here. She will be able to hear. There's no problem. But दोनों चालू होगा ना, तो वो सुनने। नहीं वो बंद कर दो, यहाँ बैठ आप, वो बंद कर, यहाँ बैठ जाओ ना।
नहीं तो मैं दूसरे रूम में जाए तो देयर इज नो कनेक्टिविटी, ये नहीं तो नहीं वो होता है। या नो प्रॉब्लम, नो। ओके गो अहेड। जय सच्चिदानंद सब महात्माओं को, सब आप पुत्रों को। और मैं थोड़ा दादा से की चरण विधि कर लेता हूँ। भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, वसंतता वसंत नामनी सर्व माया आप प्रगट परमात्मा ना सूचड़ो में समर्पण करूँ छू, समर्पण करूँ छू, समर्पण करूँ छू। हमने ये सत्संग अटेंड करना शुरू किया 1988 में साहनी साहब के थ्रू, राजेंद्र भाई साहनी के थ्रू। और एक्चुअली 4 साल तक किसी को पता भी नहीं था कि दादा के सत्संग में आप पुत्र जैसे भी कोई चीज है। तो एक नाइजीरियन था जो सत्संग अटेंड करता था, उसने पूछा कि भाई आपके दादा नहीं रहे लेकिन ऐसा कोई है क्या जो दादा के ज्ञान जानता और हमको आके यहाँ सुना सके, सिखा सके। तब सानी साहब ने बताया कि हाँ आप पुत्र है, हम उनको बुला सकते हैं। तो दैट इज हाउ Aptaputra started coming to Nigeria from 1992. और 1992 से till last year, almost 28 years, we have had, हमको दादा का पूरा आप पुत्रों का 2-2 महीने का संपर्क करो तो भी about 4 years as if we have lived with them every day. इतना हमको आप पुत्रों का संग मिला है। तो I want to वंदन पूर्वक मैं सारे आप पुत्रों को नमस्कार करता हूँ और मेरा धन्यवाद, मेरे परिवार का धन्यवाद मैं प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत कृपा की और बहुत संकेतों के थ्रू, कोई ऐसे खास बोलने के नहीं, संकेतों के थ्रू हमको काफी ज्ञान फिट होने में किया, उन्होंने किया। आई कैन पुट इट लाइक दैट। तो अनुभव तो क्या है कि एक वसंत भाई थोड़ा साइंस माइंडेड है तो हर चीज को एक्सपेरिमेंट में डालने की कोशिश करता है। तो दादा का कोई भी वाक्य पसंद आ गया तो आई लाइक टू पुट इट इन प्रैक्टिस, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद इट। तो एक समय था वहाँ नाइजीरिया में कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसे पूरी खत्म हो रही है। मेरी टेक्सटाइल मिल थी वहाँ पर और पूरी इंडस्ट्री खत्म हो रही थी। और आई वॉज इन इंडिया और हमारे वहाँ पे एक हमारे संघपति थे दादा राम ग्वालानी, वो मेरी एब्सेंस में मेरी टेक्सटाइल मिल में पहुँच गए और वहाँ जाके जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर था उसको उन्होंने पूछा कि क्या प्रोडक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसने बोला नहीं सर नहीं चल रहा है। तो वो दादा राम ने पूछा क्यों नहीं चल रहा है। तो बोला साहब हमारे पास तो LPFO नहीं है, द फ्यूल फॉर बर्निंग द बर्नर्स, वो नहीं है। तो उन्होंने पूछा कितना पैसा चाहिए तुमको। उसने बोला 3 लाख नायरा चाहिए। बोला अच्छा आओ मेरे ऑफिस में लेके जाओ और फैक्ट्री चालू करो। तो ये इंसिडेंस में इसलिए बोल रहा हूँ कि वसंत भाई को एक बहुत बड़ा अहंकार था कि वो कभी किसी इंडिविजुअल से बोरो नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी में। बैंक से ले लो, कस्टमर से एडवांस ले लो, लेकिन किसी इंडिविजुअल से पैसा मांगने का नहीं। ये वसंत भाई का अहंकार था। तो दादा राम उस अहंकार को तोड़ने के निमित्त बने, मेरे बहुत बड़े निमित्त बने और उन्होंने मेरे पूरे संकट के समय में मुझे काफी मदद की टू गेट आउट ऑफ इट। तो एक तो ये हुआ और दूसरा एक ऐसा ही संयोग बना था कि वहां पे किसी ने कंप्लेन करी पुलिस स्टेशन में मेरे बारे में और पुलिस ने मेरे को इनवाइट किया कि यू हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन और आप आओ। तो इमीडिएटली वसंत भाई का दिमाग दादा राम की तरफ गया बिकॉज ही वाज अ मेंबर ऑफ द पुलिस कमेटी ऑफ आवर रीजन, आवर एरिया। तो मैंने कहा दादा राम को पहले कॉल करूं और उनको बताऊं कि ये ऐसे ऐसे मुझे बुलाया गया है। तो लेकिन दादा का एक वाक्य एकदम ख्याल में आ गया उसी समय कि कहीं पे भी सेफ साइड नहीं करने की, कोई भी सेफ साइड नहीं करने की। तो मैंने कहा नहीं अच्छा चलो
फिर दादा का वाक्य पे ही चलते हैं अपन, देखते हैं क्या होता है। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन और वो डीपीओ के सामने the complainant wanted complaining and I started speaking something. I also answered and the complainant डीपीओ के सामने मेरा गला पकड़ लिया, यहाँ एकदम उसने पकड़ लिया। तो डीपीओ उसने, उस कंप्लेनेंट ने एक्चुअली डीपीओ को ब्राइब किया था, सब कुछ किया था कि इस आदमी को आज तुम जेल में डालो तो मेरे को इससे पैसा निकालने का है, वो सब है जो भी किया उसने किया था। बट बिकॉज उसने गर्मी के अंदर ये मेरा पकड़ लिया, तो डीपीओ वाज कंपेल्ड टू टेल that Mr. So and so, what you have done in my presence, if I want I can put you in jail just now. Mr. Kothari, you can go. ये जो सेफ साइड की जो मैं बात कर रहा था ना, कि कभी भी सेफ, दादा का वाक्य है और दादा के वाक्यों का मैंने बहुत सारी जगह पे प्रयोग किया है। एक्चुअली किताब लिखने वाला हूँ, आप पुत्रों ने भी मेरे को कहा कि आप अपना एक किताब लिखिए अनुभव की। किताब का नाम तो मैंने लिख दिया है, मेरा हिसाब, दैट इज द टाइटल ऑफ द बुक। और ये 2 है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है, एक्चुअली बहुत सारे। एक जो मैंने अभी कल परसों बता रहा था उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ कि भरत भाई के सत्संग में एक प्रश्न उठा था और भरत भाई समझा रहे थे कि ज्ञानी पुरुष की अप्रयत्न दशा होती है। ज्ञानी पुरुष तो ये चारित्र, जो अभी चारित्र की बात कर रहे थे ना, तब वो चारित्र में आता है, जब आप अप्रयत्न दशा में आ जाएंगे तब। तो ये अप्रयत्न दशा में पहुंचने के लिए दादा का एक बहुत सुंदर वाक्य है, जो अगर हम सब अपने जीवन में उसको एक्सपेरिमेंट करें तो वी कैन ग्रेजुअली रीच टू दैट अप्रयत्न दशा। और दादा का वाक्य मैं गुजराती में बोलूंगा पहले एज इट इज, एंड देन आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी ऑल्सो। वाणीनो उपयोग કર્યા વગર, વર્તનનો ઉપયોગ કર્યા વગર જે સંજોગો ભેગા થાય તે સરસ। વાણીનો ઉપયોગ કરી, વર્તનનો ઉપયોગ કરી ને જે સંજોગો ભેગા થાય એ બરાબર નહીં। अब जिस दिन मैंने ये वाक्य पढ़ा, नॉर्मली मेरी हैबिट थी कि अर्ली मॉर्निंग एज आई गेट अप, विधि वगैरह करके बिस्तर में, एंड आई यूज्ड टू रीड दादा समथिंग। तो जिस दिन सवेरे 6, 6:30 बजे मैंने ये पढ़ा, मैंने अपने बिस्तर को ठोका। मैंने कहा दादा क्या बात की आपने, बहुत खुश हो गया मैं। और थोड़ी देर में वसंत भाई को चाय की तलब लगी। वसंत भाई उठे और मेरी मेड सर्वेंट पीछे की तरफ रहती है घर के, तो उधर जाने लगा। तो फिर मैंने वसंत भाई को क्वेश्चन किया, भैया अभी क्या पढ़ा तूने? अभी क्या पढ़ा के वाणी ना उपयोग કર્યા વગર, વર્તનનો ઉપયોગ કર્યા વગર જે સંજોગો ભેગા થાય તે સરસ। गो सिट डाउन बैक। थोड़ी देर और हुई, फिर वापस वसंत भाई उठा, फिर जाने को लगा। फिर उसको करेक्ट किया मैंने कि नहीं, तू बोला है अभी कि वाणी नो उपयोग કર્યા વગર, વર્તનનો उपयोग કર્યા वगैर જે संजोगों भेगा था ये सरस, तो फॉलो इट अप नो। तो बैठा और 5 मिनट के बाद नीचे से बर्तनों की आवाज आ गई। तो मेरा, देखो वसंत भाई आपकी चाय आ गई ना। तो ये इट वाज अ वेरी 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 गुड अनुभव फॉर मी कि भाई, एंड आई कीप प्रैक्टिसिंग इट एज मच एज पॉसिबल। आई डू प्रैक्टिस दिस। तो ये जो वाणी और वर्तन का उपयोग करे बगैर जो संयोग पैदा होते हैं वो अप्रयत्न दशा है। दैट इज द अप्रयत्न दशा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल अनुभव, शॉर्ट एंड स्वीट। ये थोड़ा मैं इलैबोरेट करता हूँ। हेलो, बिजी नहीं है ना आपकी? आपकी लाइन बिजी नहीं है ना? नीना बहन बिजी नहीं, मेरी लाइन बिजी नहीं है, पर नीना बोल रही है एक तुम्हारा वो एक अनुभव है लक्ष्मी का, वो जरा सुना दो। नीना से बोल रही है। बताए, अगर है तो बता दीजिए ना, अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत है, पर ये सबको काम आएगा, इसलिए बहुत काम आएगा। एक्चुअली काम ही नहीं आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। लक्ष्मी के बारे में एकदम निरांत हो जाने का। तो क्या है कि ऐसे ही मेरे भी एक शेयर होल्डर थी जिसने केस किया और सब कुछ किया कंपनी के अंदर। तो वो फिर उसकी केस के वो हार गई। फिर भी हमने सेटलमेंट करने की कोशिश की उसके साथ। तो वो घर पे आई उसके लोगों के साथ और मैं था मेरे घर में, और घर में दादा की
बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है घर के अंदर, तो इधर लेफ्ट में मैं बैठा, सामने वो बैठे। तो उसने बोला इफ यू वांट टू सेटल यू हैव टू गिव मी 100,000 शेयर्स मोर। अब 100,000 शेयर्स कंपनी के उसको देने का, तो मैं सोच रहा था, तो मैंने जरा दादा की तरफ देखा, तो दादा बोले निकाल कर वो छे ने आपने। मैंने कहा ओके ओके गिवन। अब उसको लगा कि ये तो साला इजीली दे रहा है, तो इट वेंट अप फ्रॉम 100,000 to 400,000 in maybe 2 or 3 steps, and I would always look at Dada and ask for his permission. ऐसे आप छुट्टो था। तो I finally agreed to give that 400,000 shares to the lady. Now the story now begins now, कि जो बात में बनती है लक्ष्मी के बारे में, कि कोई भी आपको अनहक की लक्ष्मी आपसे लेना चाहता है, पहले तो आप उसको देना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि तो अनहक का मांग रहा है, मेरे से क्यों दूं मैं उसको। सपोजिंग आप ज्ञानवान लगा के और एग्री कर जाते हो कि हाँ चलो मैं देता हूं, लेकिन तो भी सामने वाले की ताकत नहीं है कि वो अनहक की लक्ष्मी ले सके, क्योंकि दैट लेडी डिड नॉट कम बैक आफ्टर माय गिविंग दी एग्रीइंग टू गिव। वो वापस आई नहीं शेयर्स का लेने के लिए। सो अनहक की लक्ष्मी कोई लेना चाहता है, आप एग्री कर जाते हो देने के लिए, तो भी सामने वाले की ताकत नहीं है कि वो आपसे ले सके, अगर हिसाब नहीं है तो। So you ended up giving her only 100,000. No, that was already there. No, when the whole thing really settled, I settled her with. लेकिन फाइनली जो उसका था वो था, yes. उतना ही जो कमिट करवाया। Finally when I closed the actually तो finally when I closed the company, वो उसके 100 भी मैंने उसको पैसे देके शेयर्स खरीद लिए और कंपनी बंद कर दी। बहुत संभाव से, उसका बहुत अच्छा संभाव। उसके बहुत सारी स्टोरीज है, उसकी और भी स्टोरी है एक्चुअली। और अगर कहूँ तो मैं आपको एक और बता सकता हूँ इमीडिएटली, बिकॉज मेरी एब्सेंस में उसने वहां पे मेरे ही एक आदमी से मिलके, मेरा जो 25 साल से मेरा ट्रस्टेड स्टाफ था, मिलके उसने मेरी मशीनें चोरी करवा दी। और वहां पे उस समय मेरे कुछ टेनेंट्स भी थे मेरी फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि फैक्ट्रियां चल नहीं रही थी उस समय, सब बंद हो गई, तो देयर वर सम टेनेंट्स। तो एक टेनेंट ने मेरे को फोन किया यहाँ पे कि वसंत भाई आपकी मशीनें कोई चोरी कर रहा है, ले जा रहा है। तो मैंने कनु दादाजी को फोन किया कि कनु दादाजी ये ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे जाने का है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला तू जा, लेकिन एक चीज करना कि तू उसके साथ और वैर मत बांधना। आई वेंट देयर, आई हैड अ वेरी गुड नाइजीरियन फ्रेंड हु केम इमीडिएटली टू सी मी एंड सेड आई नो द पुलिस कमिश्नर, आई विल गो टू हिम and get your machines and everything back. So I told him, if you do all that, what will happen? Will my enmity with that person increase or decrease? तो बोला नहीं, enmity तो और बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा बोला मेरे को ऐसा नहीं करने का। He was surprised out of his mind that a person doesn't want to take help of the police and get his things back. And that Nigerian applied this principle in his own life and he got result, and he came back and told me, Mr. Kothari, you really did a very good thing and I really appreciate the principle that you applied, and it has given me results also in my own life, that I don't have to create any enmity with people. Thank you very much. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने जो सब सिद्धांत खुले किए, वो उन्होंने जो प्रैक्टिस किया था, जीवन में जो जिया था, वो एक सिद्धांत के तौर पर हमें दिया, और वही सिद्धांत को आपने प्रैक्टिकल में उपयोग करके वो सिद्धांत आपको सिद्ध हुआ। You know that level of confidence and conviction what you attain and you get, nobody can shake you up. कोई आपको हिला नहीं सकता, इतनी स्टेबिलिटी देता है। और ये जो अप्रयत्न दशा की जो बात है, उसमें दो बातें हैं। एक तो टोटल रिलायंस ऑन व्यवस्थित शक्ति, दैट इज नेचर, एंड टू अचीव दैट अंतर तप करना।
क्योंकि आपको अंदर से यू विल बिकम इम्पेशेंट, व्हाई आई कैन डू, आई वांट टू डू, व्हाई शुडंट आई डू, और आप Why should I do? इस प्रिंसिपल को पकड़ के रहते हैं कि नहीं देखो क्या होता है। सो इससे अंतर तब होता है और आपका आत्म चारित्र खुला होता है। जैसे दादा भगवान ने बताया कि ही स्पेंड 30 लाइव्स, 30 अवतार उन्होंने व्यवस्थित शक्ति की खोज में निकाले, और बताया कि व्यवस्थित शक्ति वो सिद्धांत है, और इसी के आधार पर बोले हमने जो व्यवस्थित देखा है वो तो क्या बात है, इसीलिए हम ठरी ठाम हो गए, जैसे पूरे शांत हो गए, और इसीलिए हम शुद्धात्मा में रह सकते हैं। और ये जो बात है ना अप्रयत्न दशा, और ये जो टोटल रिलायंस ऑन व्यवस्थित शक्ति, दैट इज नेचर, to fight against all our impatientness, अंदर की जो भी सब क्या बोले सेंसिटिविटी है जो है वो सब निकालने के लिए, एंड दिस इज अ वंडरफुल थिंग। पुलिस की कंप्लेन वगैरह जो था, आपने कहा मेरा हिसाब वो बुक जरूर से वर्क ऑन इट बिफोर इट गेट्स टू लेट व्हेन यू आर यंग एंड एनर्जेटिक। तो ऑफ कोर्स इट मैटर्स नहीं, आप सबके आशीर्वाद चाहिए, सारे आप पुत्रों के आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो है, बट ये बात भी है कि यू नो आई थिंक यू मे बी लाइक 55-60, सॉरी। Thank you very much for the compliment. Thank you very much for the compliment. Yeah, so I believe, please don't waste time. जो आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि एक बार ये पकड़ेंगे ना तो खत्म करके ही छोड़ना। लेकिन these are the things, these are wonderful things. Your story very well started with राजेंद्र भाई सानी। मैं बहुत राजेंद्र भाई को बहुत अंदर से रहता था कि दादा का ज्ञान, he was the first person in the family to get the ज्ञान, and he put the whole family, brought the whole family, yes, पूरा extended family को भी, और वहां जाके उन्होंने ये सब किया, और ये निमित्त वो एक नाइजीरियन बने कि what to do if we want to go deeper into it। और देखो उन्होंने आप तो पुत्रों को इकट्ठा किया, and you said आप तो पुत्रों इकट्ठा किया for 28 years, every year 2 months almost, so that's great। Yes, so I have lived every day। नहीं, बात सही है। ये जो फिर लक्ष्मी जी की भी जो बात की अणहक, और कोई एक जगत के लोगों को बोलेंगे तो आपको पागल सा कहेंगे, ये क्या है, इनको कुछ है कि नहीं करके। See what the result is the finality। Yes, finality। yeah, that is the finality। या तो भी वो लेने भी नहीं आए, तो ये बात है। चोरी की जो बात की ये ऐसा करके कर सकते हैं, तो बोले अभी एनिमिटी बढ़ानी है कि घटानी है, तो बोले यस, वेर से छूटना वो बहुत बड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन I believe that you fought against your greed very nicely, and very good, excellent। Jai Sachidanand। Thank you Vasant bhai। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वसंत भाई, आपका एक्सपीरियंस वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को वाह 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 कर सकते हैं। अभी महात्मास आर वेटिंग फॉर योर बुक, सो प्लीज हरी अप। देयर इज a request from Mahatma ke with your blessings, sir, with your blessings, it will come। Yeah, no, we all Mahatmas wish that आप दीपिका ने बोला जल्दी पब्लिश करना हो। ओके, अभी दीपिका जी आपको कुछ बोलना है क्या? अभी श्रीमंत बुलाएगा। 1 minute। आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का? Yes, get ready for tomorrow's Janma Jayanti। All are welcome, and let's enjoy together। जैसे निमेश आनंद जी ने बड़े अच्छे से बताया है कि ज्ञान देकर दादा ने हमारी मुक्ति कर दी है। Now the biggest challenge is कि ये जो हमारे साथ है उनको फ्री करना है, उनको मुक्त करना है, और उसी के पीछे हम लग जाएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो दीपिका जी, थैंक यू।
त्रिमंत्र बुलाइए और वसंत भाई नीना बहन उसको फॉलो करना. Now you can bring her into on the screen. On the Nina is another one. Dr. Nina Beg. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अच्छा. नमो वितरागाय. नमो वीतरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो वज्रायाणम. नमो वज्रायाणम. नमो लोये सव साहुणम. नमो लोये सव साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंच नमक्कारो. सव पावपणासनो. सब पावपणासनो. मंगलाणं च सवेसिं. मंगलाणं च सवेसिं. परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.